السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے پاکستان میں اقلیتی برادری کی لڑکیوں کے لیے جبری تبدیلی مذہب اور جبری شادیوں سے تحفظ کے فقدان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس رجحان کو روکنے کے لیے مناسب قوانین وضع کرے تاکہ شادی کے لیے شریک حیات کا انتخاب فریقین کی باہمی رضامندی اور آزادانہ ماحول میں ہو۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے جنیوا سے جاری ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ مسیحی اور ہندو لڑکیاں خاص طور پر مذہب کی جبری تبدیلی، اغوا، اسمگلنگ، کم عمری اور جبری شادی کے واقعات اور جنسی تشدد کے واقعات کا شکار ہیں۔ وائس آف امریکہ کی درخواست کے باوجود پاکستان کے دفتر خارجہ کا اقوام متحدہ کے ماہرین کے بیان پر کوئی رد عمل تاحال سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستان کی حکومت کی طرف سے قبل ازیں کم عمری اور جبری شادیوں کی روک تھام کے عزم کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ویسے تو دہشت گردی اور امن و امان کے مسائل کا کئی دہائیوں سے شکار ہے، لیکن یہاں آج کل اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں عام ہیں، جس کا شکار ہزاروں شہری ہو چکے ہیں۔ جبکہ رمضان اور عید کے دنوں میں بھی اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں عروج پر رہیں، جس میں کئی لوگوں کی جانیں بھی چلی گئیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کافی گمبھیر مسئلہ ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء نے کہا کہ پولیس کی گشت میں اضافہ ہوا ہے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے تمام تر کوششیں کر رہے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ پولیس اور پروسیکیوشن کے نظام کو تبدیل کرنے اور اس میں موجود خامیوں کو حل کیے بغیر کراچی میں جرائم کی شرح پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ افغانستان بحالی کے خصوصی انسپکٹر جنرل نے جنوری سے اب تک کی اپنی سہ ماہی رپورٹ میں کہا ہے کہ داعش خراسان طالبان کی حکمرانی کے لیے سب سے بڑا دہشت گرد خطرہ رہا ہے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے سنگین بیرونی خطرہ ہے، اور ابھی حال ہی میں 22 مارچ کو ماسکو کے کنسرٹ ہال میں ہونے والے مہلک دہشت گرد حملے کی ذمہ داری بھی داعش خراسان نے قبول کی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سہ ماہی میں افغانستان سے دہشت گردی کے خطرات کا سلسلہ جاری رہا، اور اقوام متحدہ اور امریکی وزارت خارجہ نے طالبان سے دہشت گردی کے خلاف علاقائی خدشات کے درمیان امریکہ طالبان معاہدے میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ معاہدہ فروری سن 2020 میں طے پایا تھا، لیکن طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں داعش خراسان کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں پر خدشات کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ افغانستان میں داعش خراسان کی صلاحیتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ بھارت میں ایک سروے سے پتہ چلتا ہے کہ ووٹروں کی بنیادی پریشانی بے روزگاری اور مہنگائی ہے، لیکن وزیراعظم نریندر مودی کی مضبوط قیادت، ان کی پارٹی کا ہندو قوم پرست ایجنڈا اور بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی اہمیت ان کے دوبارہ انتخاب میں معاون ہوگی۔ نتائج بتاتے ہیں کہ بھارت کی عالمی ترقی کے ثمرات اس کے 1.4 بلین لوگوں کے لیے یکساں طور پر سود مند نہیں ہیں، کیونکہ پچھلے 10 سالوں میں مودی کے گھریلو مینوفیکچرنگ پر زور دینے کے باوجود ملازمتوں کے مواقع میں اضافہ اب بھی ایک چیلنج ہے۔ بھارت میں 19 اپریل کو 7 مرحلوں پر مشتمل عام انتخابات میں ووٹنگ شروع ہو رہی ہے، جس میں مودی کے آسانی سے جیتنے کی امید ہے۔ ووٹوں کی گنتی 4 جون کو ہوگی۔ امریکی سفارت خانے نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے پر ایرانی جوابی کارروائی کے خدشات کے پیش نظر امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتکاروں کی نقل و حرکت کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر محدود کر دیا ہے۔
सिफारत खाने के एक नोटिस में कहा गया है कि इंतहाई एहतियात के बाइस अमरीकी सरकारी मुलाजमीन और उनके खानदान के अफराद को तलबीब, यरूशलम और बेशुबा के इलाकों से बाहर जाती सफर पर पाबंदी लगा दी गई है। अमरीकी सिफारत खाने ने इसकी कोई वजह नहीं बताई। चीन के आला सिफारतकार वांग यी ने अपने अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से जुमे के रोज फोन पर बात करते हुए अमरीका पर जोर दिया कि वो मशरिक़ वस्ता में तामीरी किरदार अदा करे। महकमा खारजा ने कहा कि ब्लिंकन ने बीजिंग से कहा कि वो ईरान को इसराइल पर हमला करने से रोकने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। 1 अप्रैल को इसराइली हमले में दमिश्क में ईरानी सिफारती इमारत के मिस्मार होने के बाद तेहरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई के खदशात बढ़ गए हैं। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान माओ निंग ने कहा है कि चीन मशरिक़ वस्ता के मसले के हल में तामीरी किरदार अदा करते रहेगा और सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना मजबूत किरदार अदा करेगा। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने गुज़श्ता 24 घंटों में तुर्किया, चीनी और सऊदी अरब के वज़राए खारजा से गुफ्तगू की है, जिसका मकसद ये वाज़ेह करना था कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी किसी भी फरीक के मफाद में नहीं है। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने एक बाकायदा न्यूज़ ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को बताया कि वाशिंगटन खित्ते में कशीदगी का खतरे खासतौर पर ईरान की तरफ से इसराइल को दी जाने वाली धमकियों के बाद फिक्रमंद है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने मामूल की ब्रीफिंग में कहा है कि ईरान दमिश्क में अपने कौंसल खाने पर हमले को खित्ते में तनाज़ा बढ़ाने या अमरीकी तनसीबात या अमले पर हमले के बहाने के तौर पर इस्तेमाल न करे। प्रेस सेक्रेटरी करीन जॉन पियर ने मजीद कहा कि अमरीका ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया है कि अमरीका दमिश्क हमले में मुलव्वस नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब ईरान ने वाशिंगटन को इशारा दिया है कि वो अपने शामी सिफारत खाने पर इसराइल के हमले का जवाब देगा, व्हाइट हाउस ने इसराइल की सलामती के लिए अमरीका के आहनी अज़्म की तस्दीक की है। अमरीकी FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने जुमेरात को हाउस बजट पैनल के सामने अमरीका में मुमकिना मुनज़्ज़म दहशतगर्द हमले के बारे में खदशात का इज़हार किया। क्रिस्टोफर रे का कहना था कि जब मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों में अपने करियर पर नजर डालता हूं तो मुझे बमुश्किल ही कोई ऐसा वक्त याद आता है जब हमारी अवाम और कौमी सलामती के लिए मुताद्दिद खतरात एक ही वक्त में इतने बढ़ गए हों, लेकिन आज ऐसा ही मामला दरपेश है। अमरीकी हुकाम गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंग से मुतासिर होने वाले हमले के इम्कान से परेशान हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान फ़लस्तीनियों की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत के लिए इत्तिफ़ाक़ राय तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद तवील अरसे से जारी ये कोशिश अब कौंसिल में मजीद बासाब्ता वोटिंग की तरफ बढ़ रही है। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुमकिना तौर पर 18 अप्रैल को वोटिंग हो सकती है। अलजज़ायर ने यह दरख्वास्त पेश की, जो कौंसिल में अरब ममालिक की नुमाइंदगी करता है। फ्रांस के वजीर खारजा के मुआविनों ने खबर रसां इदारे AFP को बताया कि जुमे के रोज शहरियों को खबरदार किया गया है कि वो आने वाले दिनों में ईरान, लबनान, इसराइल और फलस्तीनी इलाकों का सफर करने से गुरेज करें। वजीर खारजा स्टेफन सेजर्न ने यह हिदायत एक ऐसे वक्त जारी की है जब ईरान ने शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले के रद्द अमल में जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जिससे मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। बीजिंग ने अमरीका, जापान और फिलिपाइन पर तनकीद की है और सदर जो बाइडन की वाशिंगटन में से फरीकी मीटिंग की मेजबानी के बाद बहरे जनूबी चीन में अपने इक़दामात को कानूनी करार देते हुए उसका दिफा किया है। सदर बाइडन ने जुमेरात को व्हाइट हाउस में बहरे जनूबी चीन में किसी भी हमले से फिलिपाइन का दिफा करने का अहद किया था। तीनों ममालिक के रहनुमाओं की तरफ से जारी करदा एक मुश्तरका बयान में बहरे जनूबी चीन में बीजिंग के इक़दामात पर संगीन तशवीश का इज़हार किया गया था और उसके रवैये को खतरनाक,
और जारहाना करार दिया गया था। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान माओ निंग ने जुमे के रोज वाशिंगटन में मुश्तरका सरबराही इजलास के हवाले से कहा कि बीजिंग मुतल्लिका ममालिक की तरफ से ब्लॉक की सियासत में हेरा फेरी करने और किसी भी ऐसे रवैये की सख्ती से मुखालिफत करता है जो कशीदगी को बढ़ाने और दूसरे ममालिक की सलामती और मफादात को नुकसान पहुंचाता है। रूस ने हालिया दिनों में यूक्रेन के शहरियों और तवानाई के बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर फजाई और ड्रोन हमले किए हैं, जिससे जानी और माली नुकसान हुआ है। यूक्रेन की फौज और इलाकाई एहलकार ने बताया कि 12 अप्रैल को होने वाले नए हमलों में दिनेप्रोपेट्रोव्स्क के जुनूबी इलाके में एक तवानाई की तनसीब को निशाना बनाया गया, जिसमें आग लगने से शदीद नुकसान पहुंचा। दरियासना खेरसान की इलाकाई इंतजामिया के सरबराह ओलेक्जेंडर प्रोकोडीन ने 12 अप्रैल को कहा कि जुनूबी यूक्रेन के इलाके पर गुज़श्ता रात रूसी हमले ने बुनियादी ढांचे की एक अहम तनसीब को नुकसान पहुंचाया, जिसकी शनाख्त नहीं दी गई। यूक्रेन की फजाइया ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में कहा कि यूक्रेन के फजाई दिफाई निज़ाम ने 12 अप्रैल को रूस की तरफ से 6 इलाकों में लॉन्च किए गए 17 ड्रोन्स में से 16 को मार गिराया। अमरीकी फुटबॉलर, अदाकार और ओजे सिम्पसन 76 बरस की उम्र में कैंसर से इंतकाल कर गए हैं। अमेरिका में जितनी शोहरत शोबेज और स्पोर्ट्स से जुड़ी शख्सियात को मिलती है, वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है, और ओजे सिम्पसन ने कानून से टक्कर लेने से पहले दोनों ही मैदानों में खूब नाम कमाया था। 60 और 70 की दहाई में उनका शुमार अमेरिका के बेहतरीन फुटबॉलर्स में होता था। जिस वक्त वो रिटायर हुए, उस वक्त वो अमेरिकी नेशनल फुटबॉल लीग की रशिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे, जिसमें उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जो 10,000 यार्ड से ज्यादा का रकबा तय कर चुके हों। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।